you guys will know how to write a case report and a case series. उससे ये होगा कि when you're gonna get attached to some our mentors who are currently acting as mentors in read, तो आप लोगों को आसानी होगी for understanding what they're talking about when they're actually explaining you कि किस point पे क्या करना है, क्या चीज क्या होती है. तो it's just a basic overview of every single thing that you need to know before actually starting research. So yeah. So research जो है, you cannot do it alone and you will need people who gonna help you. और these are my mentors जिन्होंने मुझे help की and उन्होंने मुझे बेवकूफ नहीं बनने दिया. उन्होंने हर चीज को इतना अच्छा explain किया and they were amazing. This is Dr. Abdul Rafi, my first mentor, जो कि मुझे read ने assign किए थे and we did a super unique case on mad cow disease जो हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे उन्होंने शायद ये पढ़ लिया in biochem and it's like a very unique case जो कि शिफा में present हुआ था. तो he was my first mentor. उन्होंने मीटिंग में हमें पहले बैठ के सब कुछ समझाया था and he made sure कि we were included in every single thing. और दूसरे हमारे हैं डॉक्टर अहमद सुहेल. He's currently preparing for his match and mashallah he's also a house officer at Shifa International Hospital. So these guys helped me a lot. Because of them I've presented at so many places. I have 3 to 4 publications जो कि are in the process of peer review and I've presented those cases at so many places. And the fact that you go to places, meet new people, like-minded people who are doing research, who talk about research and innovation and stuff like that, it's so cool. I've been to Aga Khan, I've been to Fuji Foundation, I have presented at Shifa twice. So these are the people and these are the people who helped me शुरू में. अगर ये ना होते तो obviously मेरी research वही अटकी रहती जहाँ पे मैं first day में थी. First year की research में मैं आई थी और I was very enthusiastic but I did not know how to start. So इसीलिए हम लोगों ने अपना read का एक mentorship program launch किया है. You guys should go check it out. Initially ये workshop जो थी वो in person plan थी लेकिन because first year is on vacations so we had to improvise और हमें online करनी पड़ी. लेकिन yeah, mentors help you a lot. और अगर मेंटर्स नहीं होंगे तो बात मुश्किल होती है. एंड केस रिपोर्ट और केस सीरीज में इस तरह की चीजें होती हैं जो अभी एज फर्स्ट ईयर्स एंड एज सेकंड ईयर्स आप लोग नहीं कर पाओगे इफ यू डोंट हैव द राइट पीपल. सो हम लोग एक्चुअली definition of case report or case series se pehle I'm going to discuss this very cool documentary that I saw on Netflix. By the way, Netflix also has some cool stuff that's not on random shit, so you guys should check it out. Or matlab it's very cool. तो दिस इज अ स्टोरी और मैं इनकी स्टोरी डॉक्टर बेन की इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इट्स गोना रिलेट हाउ आई एम गोना एक्सप्लेन केस सीरीज एंड केस रिपोर्ट. तो डॉक्टर बेन जो थे, ही वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. ही वाज फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, वर्कड रियली हार्ड, बिकेम अ सर्जन. और उसके बाद फिर इनके पास कंजॉइंट ट्विंस प्रेजेंट हुए थे. एंड कंजॉइंट ट्विंस फॉर द फर्स्ट ईयर्स एंड सेकंड ईयर्स मैं बता देती हूँ ये कि ट्विंस थे लेकिन देयर heads fused during their time in their mother's womb. और उसकी वजह से when they were born उनके दोनों के skulls जुड़े हुए थे and their meninges were also joined together. तो इन्होंने उस पे एक complex surgery perform की थी and was a very cool story. अगर आप लोगों को time मिले to do check it out and watch this documentary. तो उन्होंने उसको उन दोनों को separate किया था and it was a very successful operation. So the reason why I'm mentioning this thing in my presentation is कि case report के बारे में अभी थोड़ा बहुत first years को पता होगा कि मतलब हाँ it's writing about something rare, something new. लेकिन आप case report जो है वो इस तरह की चीजों पे भी लिख सकते हो. Since this surgery was never done in the history of medicine and अगर history of medicine में हुई भी थी, it was not successful. तो
आप ये चीज मेंशन कर सकते हो कि हाँ मैंने ये सर्जरी की एंड माय पेशेंट्स बोथ ऑफ देम सर्वाइव्ड, इनका दोनों का प्रोग्नोसिस दैट मींस पोस्ट ऑप उनकी जो हालत थी और उनका जो रिकवरी टाइम था वाज शॉर्ट। तो इस तरह की चीजें भी मेंशन करके यू कैन राइट अ केस रिपोर्ट। सो केस रिपोर्ट और केस सीरीज हमेशा ये नहीं होगा कि आपके पास कोई बहुत ही यूनिक नई चीज आ जाएगी कि कोई नई बीमारी इजाद हो जाए। आप इस तरह की टॉपिक्स पे भी केस रिपोर्ट केस सीरीज लिख सकते हैं। तो दिस वाज अ वेरी कूल थिंग दैट आई रियली वांटेड टू मेंशन। और फिर केस रिपोर्ट को केस सीरीज में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है वो भी मैं इस एग्जांपल से समझाऊंगी, एंड देन वी गोना जंप इनटू द स्टफ दैट्स अ लिटिल बोरिंग, लेकिन आई ट्राई कि मैं आप लोगों को ना सुनाऊं। तो हमारी सर्जन थे, इन्होंने पहली सर्जरी जो की थी 1987 में की थी, एंड बोथ ऑफ द गर्ल्स सर्वाइव्ड और इट वाज अ कंप्लीटली सक्सेसफुल ऑपरेशन। उस पर उन्होंने केस रिपोर्ट लिखा, लेकिन आफ्टर दैट ही परफॉर्म्ड 2 more सर्जरीज, जिसके अंदर एक दफा अनसक्सेसफुल ट्राई थी और दूसरी दफा जो थी इट वाज सक्सेसफुल। तो इट्स नॉट ओनली कि आपकी जब सक्सेसफुल कोई चीज हो आप तभी रिपोर्ट करते हो लिटरेचर में, आपको जो जो आप गलतियां करते हो आपको वो भी रिपोर्ट करनी चाहिए। जैसे सर्जन ने एक ऑपरेशन किया और उसने एक नई टेक्निक ट्राई करने की कोशिश की कि वो स्टमक को अप्रोच करना चाह रहा था विद अ हॉरिजॉन्टल विद अ वर्टिकल इंसिजन। तो वर्टिकल इंसिजन की जगह उसने यूजुअली लोग वर्टिकल करते हैं, उसने हॉरिजॉन्टल करके देखा। तो हॉरिजॉन्टल से प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट और आउटकम ऑफ द ऑपरेशन बहुत खराब हो गया। तो वो उसको लिटरेचर में मेंशन करेगा कि प्लीज आइंदा कोई ऐसे ना करे, ये बड़ा खराब होता है, इसमें पेशेंट जो है उसकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो या दिस इज अ लिटिल बिट हिस्ट्री एंड अ लिटिल हुक के आप लोग अटैच हो with the rest of the presentation. ये हमारा पिरामिड था, ये हमारे प्रेजेंटर ने लास्ट टाइम बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर यू गाइस आर स्टैंडिंग राइट नाउ। दिस वाज this whole presentation was supposed to be on case series, लेकिन मैंने इसके अंदर case report भी incorporate कर दिया because there's not a lot of difference between writing a case report and case series. तो हम साथ साथ चीजें cover करेंगे। तो by the end of this whole presentation you guys will get to know के मतलब case series और case report कैसे लिखते हैं, and as first years and second years how you guys can write your own stuff and get started with research. तो ये केस रिपोर्ट की डेफिनेशन है, हमने इसको डिस्कस भी कर लिया। एक अनयूजुअल पेशेंट हो सकता है, कोई अनयूजुअल फाइंडिंग हो सकती है। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास पेशेंट आया, ठीक है, पेशेंट जो था वो डायरिया का था। डायरिया पर आपको इतने ज्यादा पेशेंट्स मिलेंगे, बेतहाशा भरा हुआ होगा पबमेड, हर वक्त डायरिया के पेशेंट्स होते हैं और इतना पुराना डायरिया प्रेजेंट हो रहा है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन आपके पास जो ओपीडी में पेशेंट डायरिया वाला आया ना, लेट्स से वो बंदा लाल था। दिस इज नॉट एन एक्चुअल केस, लेकिन वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो आपका पेशेंट जो था उसको एक नॉर्मल बीमारी थी जो कि डायरिया थी, लेकिन कभी भी हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा कि डायरिया के साथ एक पेशेंट है वो पूरा रेड है। तो ये चीज इट इज ऑल्सो समथिंग दैट्स वर्थ मेंशनिंग। तो आप अपने लिटरेचर में इसके बारे में सर्च कर सकते हैं एंड यू कैन राइट अ केस रिपोर्ट ऑन दैट। तो इस एग्जाम्पल को हम आगे लेके चलेंगे, एंड देन व्हेन वी आर डिस्कसिंग द कंपोनेंट्स ऑफ केस रिपोर्ट और केस सीरीज, तो हम उसमें इसी एग्जाम्पल को लेके चलेंगे कि एक पेशेंट है जिसको डायरिया है, वो लाल है। तो वो लाल क्यों है, ऐसा पेशेंट कभी प्रेजेंट हुआ है या नहीं, या क्या नहीं। गाइज अगर कुछ समझ आ रही हो तो प्लीज थम्स अप दे दो, अगर नहीं समझ आ रही तो प्लीज पूछ लिया करो, क्योंकि फिर पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। लेकिन एवरीथिंग्स परफेक्ट। ओके, थैंक यू शांति। सो ये केस रिपोर्ट और केस सीरीज का मैंने आप लोगों को पहले भी डिफरेंस बता दिया है, एंड ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए व्हेन यू आर फाइंडिंग अ केस। और केस ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, अगर केस मिल जाए तो केस लिखना इतना मुश्किल नहीं होता। तो आपको मैं बताती हूँ, आप प्लीज गाइज आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हो तो प्लीज मुंह उठा के हॉस्पिटल में चले जाना। लेकिन सबसे पहले यू नीड टू फाइंड अ वेरी वेरी गुड मेंटोर जो कि आपको टाइम दे सके, जो कि आपको हेल्प कर सके, एंड देन with that mentor, with the help of that mentor, try finding a case. आप हॉस्पिटल में जाते हो, you introduce yourself to the doctor, अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो आप वेट करते हो डॉक्टर्स का, मुंह उठा के कमरों में नहीं जाते डॉक्टर्स के, you wait
जब वो पेशेंट से फ्री होते हैं आप जाके सलाम करते हो, उनसे पूछते हो कि सर मैं आपसे 2 मिनट चाहता हूँ, मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो इज्जत से आप उनसे पूछो। अगर वो टाइम नहीं दे सकते तो यू वेट अगेन, वरना आप वापस चले जाते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपका प्रोफेशनलिज्म, आपका रिसर्च से पर मेहनत करना दिखाती हैं, और इसी के बाद फिर आपको डॉक्टर्स अपनी केसेस देते हैं, वरना बहुत मुश्किल होता है। तो आप को वो कोई नॉवल केस दे सकते हैं जो कभी नहीं नजर आया। जैसे आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट अ वेरी वेरी नॉवल केस जो कि बहुत कम दिखता है वर्ल्ड वाइड। मैड काउ डिजीज इज वेरी वेरी रेयर, तो हमें उस वक्त वो मिल गया था। फिर लेसन जैसे मैंने सर्जरी का डिस्कस किया था। देन चेंजेस इन प्रैक्टिस, अगर मैं सर्जरी का बता रही हूँ कि इस तरह सर्जरी करने से बेहतर आउटकम आता है, तो वो हम उससे गाइडलाइंस भी चेंज कर सकते हैं। और कंसेंट और इमेजेस जो है वो भी आपकी डुएबल होनी चाहिए। सो बिफोर यू राइट अ वर्ड इन शिफा, प्लीज 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 गाइज, अगर आपको केस मिल गया है तो मेक श्योर यू राइट IRB एंड गेट इट अप्रूव्ड। और ये एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है इफ योर पेशेंट इज नॉट प्रेजेंटिंग, या वो बेचारा मर गया है एंड स्टिल यू राइटिंग ऑन दैट पेशेंट, तो आप उसके पेशेंट के घर वालों को कॉल करते हो, उनसे तमीज से बात करते हो, उनको बताते हो कि आपका केस जो था वो बहुत रेयर था आपके पेशेंट का, और हम उस पर रिपोर्ट लिखना चाहते हैं, और उसमें हम आपके पेशेंट की कोई भी ऐसी आइडेंटिफायर नहीं लिखेंगे जो कि एक्चुअली बताए कि पेशेंट ये वही आपका रिश्तेदार है या नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं मेंटेन करोगे और मुंह उठा के हर जगह अपने पेशेंट का नाम बताओगे, पेशेंट का MR नंबर बताओगे, तो आप जर्नल से भी ब्लैकलिस्ट हो सकते हो, और आप को कॉन्फ्रेंसेस पे भी नहीं बुलाया जाएगा। तो these are the small nitty-gritty details that you need to take care of when you're writing your case report or case series or any research project, कि आपने अपने पेशेंट्स का डाटा किसी से नहीं शेयर करना, उनका नाम किसी को नहीं बताना, उनको किसी तरीके से जज नहीं करना, बिकॉज इफ डाटा इज लीक्ड उससे फिर काफी सारे मसले होते हैं। डाटा इलीगली यूज हो सकता है, जजमेंटल हो जाते हैं लोग एंड व्हाट नॉट। तो IRB का एक फॉर्म मिलता है फ्रॉम द IRB ऑफिस, दैट्स बेसिकली इन दारुल शिफा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के दारुल शिफा जो है वो शिफा के सामने एक बिल्डिंग है, दैट्स नोन एज दारुल शिफा, और उसके अंदर आपको IRB का ऑफिस होता है, वहां से आपको IRB का फॉर्म मिलता है। IRB का फॉर्म आप हमसे भी ले सकते हो रीड पे ईमेल करके, या किसी भी रीड मेंबर को मैसेज करके, लेकिन आपको वहां से फॉर्म मिलता है, देन यू नीड टू फिल दैट फॉर्म, और फिर साथ कंसेंट फॉर्म होता है जिसपे पेशेंट की सिग्नेचर्स ना हो तो IRB अप्रूव नहीं करता। पहले ये जो होता था IRB आपको केस रिपोर्ट के लिए नहीं जरूरत होती थी, लेकिन अब करनी पड़ती है, तो दैट्स अनदर एडेड हासिल। सो या फिर अब हमारी केस रिपोर्ट या केस सीरीज के ये 5 कंपोनेंट्स हैं, वी गोना डिस्कस देम वन बाय वन। और हम वही अपनी पुरानी पेशेंट वाली एग्जांपल लेंगे कि एक पेशेंट था। Hassan, can you please check? There's someone in the meeting whose camera is on. I'm not sure. So, 6 parts हैं हमारे, और इन parts को हम लोग discuss करेंगे with the example कि जो हमारा पेशेंट है डायरिया के साथ आया है और वो लाल है, ठीक है। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में एक एक्चुअल केस वाली नीचे एग्जांपल भी लिखी हुई है। सो इफ यू गाइस वांना लाइक इफ यू वांना रीड के उसमें एक्चुअली में केस में क्या हुआ था वो भी कर सकते हैं। हम जब कंक्लूजन तक पहुंचेंगे वी आर गोना गो थ्रू एन एक्चुअल केस सीरीज जो कि पबमेड जर्नल पर प्रेजेंट हुई है। मैं अपनी केस सीरीज अदीना रीबा के साथ जो मैंने की थी, डॉक्टर अहमद थे उसमें, डॉक्टर फनूद थी, एंड वी हैड डॉक्टर माशाल्लाह एज वेल हु रिसेंटली मैच्ड माशाल्लाह। तो उनकी वाली नहीं प्रेजेंट कर सकती बिकॉज इट्स अंडर पीयर रिव्यू, और वो जर्नल की रिजर्वेशन है दैट वी कैन नॉट डिस्क्लोज इट जस्ट yet। तो फर्स्ट पार्ट ये होता है कि टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट, ये जो होता है इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर केस रिपोर्ट। मतलब ये एक सेइंग है जो बहुत लोग बोलते हैं, मैं भी बोलूंगी, उसका ये है कि जो चीज कैची नहीं होती, जो चीज क्लिकबेट वर्दी नहीं होती, यू वोंट टच इवन टच दैट। अब मैं लिखूंगी हाँ ठीक है मैं एक केस रिपोर्ट लिखी हूँ, पेशेंट विद केस रिपोर्ट ऑन अ पेशेंट विद डायरिया, मैं अगर ये सेंटेंस लिखूं ना
तो मेरी केस रिपोर्ट को खोल के भी नहीं देखेगा। भाई मतलब ये क्या इस जमाने में आके डायरिया लिख रही है, डायरिया पे इतनी बातें हो चुकी हैं, इतने लोग लिख चुके हैं, और ये आके डायरिया पे लिख रही है। दैट्स सो स्टूपिड। तो कोई खोल के भी नहीं देखेगा। आप जर्नल्स को भेजोगे, जर्नल्स कहेंगे पागल होगी है, इतना उस पर काम हो चुका है, दवाइयां आ गई हैं, लोग ठीक हो जाते हैं, कोई मर नहीं रहा। तो व्हाई डू यू वांट टू राइट ऑन अ पेशेंट विद डायरिया, अ केस रिपोर्ट ऑन अ पेशेंट विद डायरिया? तो इसके अंदर आपने अपने केस की यूनिक फाइंडिंग भी मेंशन करनी होती है, एंड यू नीड टू मेक श्योर कि बहुत वो कैची सा ना हो। जैसे हम कर सकते हैं, पेशेंट विद डायरिया हुज होल स्किन कलर वाज रेड। मैं थोड़ा सा सिंपल करके आप लोगों के लिए इसे बता रही हूँ, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ फर्स्ट ईयर्स एंड सेकंड ईयर्स, तो उनके लिए थोड़ी मेडिकल टर्म्स मुश्किल होंगी। हम ये वाली एग्जांपल भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने टाइटल को क्लिक वर्दी बनाना है। वरना अगर आपका कोई टाइटल पबमेड पर टच नहीं करेगा, कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपका कोई पेपर नहीं पड़ेगा, एंड देन यू वोंट गेट साइटेशंस एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ पब्लिशिंग अ पेपर। तो यहाँ पर जो एक हमने केस की एग्जांपल ली है वो है esophageal adenocarcinoma. That's basically a fancy word for cancer for second year and first years with unexpected high levels of AFP levels, a diagnostic challenge. So what that person is trying to tell you कि adenocarcinoma esophageal का esophagus का कैंसर होता था लोगों को, बहुत अरसे से प्रेजेंट हो रहा है, ट्रीट भी हो रहा है एंड व्हाट नॉट, लेकिन उस पेशेंट में कभी भी AFP के लेवल्स हाई नहीं देखे। तो अगर AFP के लेवल्स हाई हुए हैं, तो वो डायग्नोस्टिकली उसको किस तरह, जो डॉक्टर है उसको चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो इट इज अ वेरी वेरी कैची नेम। आई वुड वांट टू रीड इट कि मतलब AFP जो है वो लेवल्स नॉर्मल होते हैं इन नॉर्मल एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा के पेशेंट्स में, लेकिन इस पेशेंट में इट वाज हाई। तो अब उसमें क्या मसले आए? ठीक है, अब मैंने अपनी जो रीडर था उसको कोशिश कर ली कि उसने मेरी रिसर्च के पेपर को क्लिक करके खोल लिया। अब जब खोल लिया, तो अब उसके द फर्स्ट थिंग दैट पर्सन इज गोना रीड इज द एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट इज बेसिकली आपकी पूरी रिसर्च कंडेंस्ड इनटू अ स्मॉलर पैराग्राफ, और वो आपकी रिसर्च को डिफाइन करती है कि आपकी रिसर्च जो है उसमें क्या अनयूजुअल था, पेशेंट जो था उसके अंदर क्या ऐसी चीज थी जो कि जिससे मुझे एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट फायदा होगा। तो यूजुअली पेपर्स ये डॉक्टर्स पढ़ रहे होते हैं एंड यू आर एडिंग टू द लिटरेचर, और डॉक्टर्स अगर इस तरह की कोई चीज नहीं देखते हैं तो दे वुड वांट टू रीड इट। लेकिन अगर आपने उनको यहाँ एब्स्ट्रैक्ट में गंदा सा लिखा हुआ है या उसमें कोई मतलब जान छुड़ाई हुई है, तो दे वोंट रीड योर पेपर। सो फिर वही बात आ गई कि फिर आपका पेपर नहीं रीड करेंगे। तो यू गोना मेक श्योर कि हर स्टेप से आगे आप अपने रीडर को कंपेल करो कि वो एक्चुअली आपका पेपर पढ़े। So yeah, that's basically it about title and abstract. Then we have the introduction. यहाँ से आपका पेपर actually start होता है। Introduction में आपने बताना होता है कि existing literature में आपके पास क्या प्रेजेंट है, एग्जिस्टिंग लिटरेचर में एडिनोकार्सिनोमा के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, उस और AFP लेवल्स के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन एडिनोकार्सिनोमा एंड AFP लेवल्स। अब मैं पुराना वाला केस लेके आती हूँ जो हमारी फनी एग्जांपल थी कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर में कभी कोई प्रेजेंट हुआ है विद डायरिया एंड रेड स्किन। तो ये चीजें हम ढूंढ सकते हैं AI के थ्रू। AI के अंदर हमारे पास एक टूल है जिसका नाम इलिसिट है। आई एम सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को इलिसिट नहीं दिखा सकती, लेकिन इज अ वेरी वेरी कूल टूल। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बिकॉज वो इसकी डोमेन से बहुत आगे निकल जाएगा, तो आई वुड नॉट वांट प्रोलॉन्ग दिस होल सेशन। लेकिन इलिसिट जो है इट्स एन AI टूल फॉर लिटरेचर रिसर्च। लिटरेचर रिसर्च में यू एक्चुअली गो अप ऑन पबमेड और एनी गुड सर्च मेडिकल सर्च इंजन जहाँ पर आप अपने पेपर्स ढूंढते हो और पूछते हो इंटरनेट से कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है पहले लोगों ने, डॉक्टर्स। तो इलिसिट ये करता है कि आप उसको बताते हो कि हाँ मेरे पास ये टॉपिक है, मेरे पास ये पेशेंट है, आप मुझे बताओ उस पर क्या लिखा हुआ है। वो आपको एक माइंड मैप बना देता है कि इस वक्त ये लिखा हुआ था, इस वक्त ये लिखा हुआ था। वो आपको समरीज दे देता है, शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट्स लिख के दे देता है, एंड इट इज वेरी कूल और आपकी लिटरेचर रिसर्च को इतना आसान बना देता है, यू गाइज कैन नॉट इवन इमेजिन। तो उसके अंदर एक और ऑप्शन होता है, यू कैन लिटरली टॉक टू द पेपर्स। तो आप
के जहन में जो भी क्वेश्चंस होते हैं अबाउट द पेपर्स एंड अबाउट व्हाट यू वांट टू फाइंड, व्हाट यू वांट टू रिपोर्ट, तो आप वो भी सर्च कर सकते हो सारे पेपर्स के अंदर विदाउट यू एक्चुअली गोइंग थ्रू एवरी सिंगल पेपर. सो दैट इज अ वेरी वेरी कूल टूल. उसको इलिसिट कहते हैं, ELICIT, इलिसिट. तो उसको आप जरूर ट्राई करना फॉर योर लिटरेचर रिसर्च. इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट और आपका बहुत टाइम सेव करेगा. तो बैक टू द इंट्रोडक्शन. इसके अंदर मैं दिखूंगी कि हाँ ठीक है, दुनिया में इस पेपर में ये रिपोर्ट हुआ, इस पेपर के ये पेपर के मुताबिक लिखा हुआ है 48% पीपल विद डायरिया टर्न रेड. तो फिर मैं ये इस तरह की बातें लिखूंगी. लेकिन व्हेन आई एम राइटिंग द इंट्रोडक्शन, आई नीड टू मेक श्योर कि मैं वही लाइनें उठा के कॉपी पेस्ट ना करूं, बिकॉज दैट कम्स अंडर प्लेजरिज्म. और प्लेजरिज्म होता है तो आपका पेपर जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है कि आपने बस चोरी करके एक काम किया है. एंड एक्चुअली आपने उनकी चीज को साइट करना होता है. देयर इज अ वे हाउ यू साइट स्टफ. तो आपने उनकी पेपर से लेट्स से लाइन लिखनी है. आपने लाइन लिखनी है कि हाँ 48% of the people who present with diarrhea in the OPD. By the way guys, this is not an actual disease. इस तरह कुछ नहीं होता कि डायरिया के पेशेंट लाल होते हैं. I'm just trying to make things easier for you guys. तो इसलिए I'm giving that example. तो 48% people who present to the OPD with diarrhea turn red. तो आपने ये एक पेपर में लिखा हुआ था, ठीक है. अब आपने उस पेपर के अंदर से ये लाइन लिखनी है अपनी इंट्रोडक्शन में कि आप बताएं कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर क्या कहता है मेरे टॉपिक के बारे में. तो आपने उसको उस लाइन को एग्जैक्टली नहीं कॉपी करना, आपने उसको अपनी वर्डिंग में चेंज करना है, ठीक है. अब थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आप वर्डिंग चेंज करोगे एंड यू कैन राइट इट हियर इन योर इंट्रोडक्शन. फिर उसके बाद आप उसके आगे नंबर कर दोगे, रेफरेंसिंग करोगे, 1 लिख दोगे, ठीक है. और नीचे आप पेपर के एंड में रेफरेंसिंग वाले सेक्शन में आप उस जर्नल को साइट कर दो और उस ऑथर को साइट कर दो कि हाँ इसके इस पेपर में से मैंने ये लाइन ली है एंड दैट्स व्हाट ही सेड एंड इट रिलेट्स विद माय केस. सो आई होप इट मेक्स सेंस. और इंट्रोडक्शन के अंदर आपने लिटरली सिर्फ अपनी पूरी दुनिया के जितने भी पेपर्स आपके टॉपिक पे लिखे होते हैं आपने उसमें से चीजें उठा के अपनी इंट्रोडक्शन में डालनी होती है ताकि आपका रीडर जो है गोइंग थ्रू योर पेपर उसको पता चले कि पहले दुनिया में क्या हो चुका है. So yeah, that's basically it about introduction. So case report वाला part आ गया. case report वाला part ये case presentation वाला part ये कि ये वाली चीज पे मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ. Last year when I did the case series, I was working with Dr. Sabine. और Dr. Sabine ने ना ग्रुप पे मैसेज कर दिया, हाँ अलीजा you are gonna present at Fuji Foundation और आपने प्रेजेंटेशन देनी है, ओरल प्रेजेंटेशन. फनी बात ये कि मुझे ओरल प्रेजेंटेशन का पता नहीं था. मुझे डिफरेंस नहीं पता था व्हाट्स एन ओरल प्रेजेंटेशन, व्हाट्स अ पोस्टर प्रेजेंटेशन. और मैंने कहा ओके मैम डन, आई विल गिव अ प्रेजेंटेशन. आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, हाँ ठीक है मैं तो प्रेजेंट कर लेती हूँ, तो मैं उस दिन भी कर लूंगी, कोई मसला ही नहीं है, पोस्टर बना हुआ है. लेकिन मुझे पता चला प्रेजेंटेशन से 2 दिन पहले के पोस्टर बना हुआ है, लेकिन दिस इज the conference where I'm presenting, it's an oral presentation. और oral presentation के लिए you need to have an actual presentation, not a poster. तो ये मुझे पता चला जब डॉक्टर सबीन ने मुझे 2 दिन पहले मुझे उन्होंने अपने ऑफिस बुलाया. कितनी guys you have to be very patient when it comes to doctors because they're very nice and चीजें भूल जाते हैं वो. लेकिन डॉक्टर सबीन ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और उन्होंने मुझे कहा मैंने तो नहीं आपको बुलाया. उसके बाद फिर मेरी बेइज्जती हुई. उन्होंने मुझे कहा कि आपने प्रेजेंटेशन नहीं बनाई. मैंने कहा मैम मुझे तो पता ही नहीं था. मैम कहती हैं आपको क्यों नहीं पता था. फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपने प्रेजेंटेशन में ये भी डालना है वो भी डालना है. और मतलब एज ए सेकेंड ईयर आई डिड नॉट नो हाउ टू टेक हिस्ट्री. आई डिड नॉट नो कि मतलब क्या हो रहा है. और बस उन्होंने मुझे कहा कि आपने प्रेजेंटेशन करनी है और उन्होंने कहा कि आपने मुझे प्रेजेंटेशन बना के भेजनी है. और आई वाज क्लूलेस. मेरे पास मुझे ये भी नहीं पता था पेशेंट्स के नंबर कहाँ से मिलेंगे क्योंकि पेशेंट्स की हिस्ट्री डालनी थी. ओरल प्रेजेंटेशन इज कंपैरेटिवली लॉन्गर देन अ पोस्टर प्रेजेंटेशन. फिर डॉक्टर सबीन ने मुझे बताया, शी वाज वेरी काइंड इनफ. उन्होंने मुझे कहा कि जाएं एमआर नंबर लें. उन्होंने मुझे एमआर नंबर दिए पेशेंट्स के. फिर मैंने एमआर नंबर से जाके उनके फोन नंबर निकाले एंड देन आई वाज कॉलिंग देम. और फिर मैंने उनको ट्रैक डाउन किया. एक जो थे वो पेशेंट उनके फादर हॉस्पिटल में ही होते थे. मैंने उनसे जाके टाइम सेट किया, उनसे हिस्ट्री ली. माइंड यू गाइस आई डिड नॉट नो हाउ टू टेक पीडियाट्रिक हिस्ट्री. मुझे कुछ पता नहीं था हिस्ट्री. पीडियाट्रिक हिस्ट्री एक अलग सी चीज होती है. तो मैंने ChatGPT से बैठ के हिस्ट्री सीखी. फिर मैंने हिस्ट्री ली. फिर मैंने दूसरे पेशेंट के
फादर को दिन रात कॉल्स की, उन्होंने फोन बहुत मुश्किल से उठाया, और फिर उनसे भी मैंने हिस्ट्री ली। फिर मैंने बैठ के 2 रातों में सोई नहीं। आई मेड द प्रेजेंटेशन एंड डॉक्टर सबीन वाज लिटरली शॉक्ड कि मतलब एज अ सेकेंड ईयर मैंने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे बना ली है। तो समटाइम्स व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च आपको अपनी नीड सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। यू हैव टू सैक्रिफाइस योर प्लान एंड अ लॉट ऑफ स्टफ, जिस और अ लॉट ऑफ टाइम जिसमें आप एक्चुअली घूम फिर सकते हो, और हमारे केस में आइए जा सकते हो। तो फिर मैं वो केस प्रेजेंट करने फूजी फाउंडेशन गई। वहाँ मुझे पता चला कि आई वाज द ओनली मेडिकल स्टूडेंट सिटिंग इन द होल हॉल। वहाँ पर कोई भी मेडिकल स्टूडेंट नहीं था, सारे कंसल्टेंट्स बैठे थे, पीजीज बैठे थे, एसआर्स बैठे थे, और उन सब में खड़े होके मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी एंड दे वर सो हैप्पी कि, और मेरी सेकंड पोजीशन आई। आई वाज द ओनली स्टूडेंट प्रेजेंटिंग, बाकी एसआर से, पीजी से, और उनमें मेरी सेकंड पोजीशन आई, और मुझे बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली। आई हैव अ पिक्चर ऑफ that day as well. I'm gonna show you guys that thing at the end. तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीजों से एक्सपोजर होता है, अर्ली एक्सपोजर होता है, एंड आपका दिमाग जो है वो चीजें सोचना शुरू करता है। अब आप मुझे कहोगे कि लीजा ओरल प्रेजेंटेशन देनी है, इस टॉपिक पे देनी है, मुझे पता होगा कि मैंने कहाँ जाना है, मैंने क्या लेना है, मुझे क्या चाहिए, मैंने अपनी केस रिपोर्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे आगे क्रॉस सेक्शनल के लिए किस तरह प्रेजेंटेशन बनानी है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है ना, जस्ट जस्ट गेट इनटू स्टफ। अल्लाह ताला आपको इतनी हेल्प करते हैं, एंड मेक श्योर यू कीप मेकिंग दुआ टू अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला प्लीज हेल्प मी, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस। आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं, आप ही मेरी हेल्प करेंगे, एंड आई नो आपने ही सब कुछ ठीक करना है। तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि मैंने इतने कम टाइम में प्रेजेंटेशन भी बनाई, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर भी की, और एक नई स्किल भी सीखी। तो इट वाज वेरी कूल। आई होप यू गाइस लाइक द स्टोरी। लेकिन दैट वाज बेसिकली इट अबाउट केस प्रेजेंटेशन। आपने उसमें अपनी पेशेंट की हिस्ट्री प्रेजेंट करनी होती है कि पेशेंट आया, वो उसकी एज क्या थी, उसका आपको क्या चीज साइंस एंड सिम्टम्स थे, आपने क्या टेस्ट करवाए, क्या फाइंडिंग्स मिली, और क्या एबनॉर्मल चीज थी जो आपने देखी जिस पर आप केस रिपोर्ट लिख रहे हैं। जैसे हमारे केस में डायरिया वाला पेशेंट जो कि लाल था, लेकिन इसमें कैच ये है कि आपने इसमें कोई ओपिनियन ही बताने। लेट्स से कि मुझे लग रहा था कि डायरिया वाला पेशेंट जो था वो उसने कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया था जिसकी वजह से उसकी सारी स्किन जो है रेड होती थी। अगेन दिस इज नॉट एन एक्चुअल एग्जांपल, दिस इज नॉट क्लिनिकली रेलेवेंट, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर्स को थोड़ी समझ में आ जाए। कोई मुश्किल एग्जांपल नहीं ले रही ये एडिनोकार्सिनोमा वगैरह की, बिकॉज दैट वोंट मेक सेंस टू यू गाइस। तो आपने इसमें अपना ओपिनियन नहीं देना मुझे, क्योंकि मुझे लगता था इस बंदे ने कोई रेड कलर का डाई का टीका लगाया तो ये लाल हो गया, इसका डायरिया से कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन आपने ये चीजें नहीं मेंशन करनी अभी तक केस प्रेजेंटेशन में। उसके बाद वी हैव द डिस्कशन पार्ट। डिस्कशन पार्ट में ये होता है कि आपने अपना केस के साथ एग्जिस्टिंग लिटरेचर को कोरिलेट करना होता है कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो कहता है वो कहता है कि डायरिया जो है जिन पेशेंट को होता है वो 4 to 5 times स्टूल के साथ प्रेजेंट करते हैं एक दिन के अंदर, और उनकी ये केस प्रेजेंटेशन होती हैं, उनका क्या कहते हैं, नॉजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, चक्कर आते हैं, वीकनेस होती है, व्हाट नॉट। लेकिन फिर आपने ये लाइन किसी पेपर से साइट की, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने उनकी पेपर से लाइन उठा के डायरेक्टली नहीं लिखनी, आपने अपने वर्ड्स में उनके पेपर से लाइन लेनी है और उनको साइट करना है, उनको रेफरेंस देना है, क्रेडिट देना है, और उसके बाद लिखना है although this was what we saw in the literature, lekin my patient was a patient who presented in the OPD with diarrhea but his whole skin color was red. तो आपने हर नॉर्मल जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसकी चीजों को कोरिलेट करना है with each and every finding that you find peculiar in your case. I hope that makes sense guys. अगर कुछ समझ आ रही है तो please send thumbs up. Okay, and in the end we have conclusion जिसमें आपने अपना केस को समराइज करना होता है एंड अपनी रेयर चीज को बताना होता है, एंड ऐसी चीज लिखनी होती है जो एक्चुअली बंदे को याद रहे कि हाँ मतलब इसका पेशेंट जो था इसका ये मसला था, ठीक है ये मसला था और ये पहली दफा प्रेजेंट हुआ है। जैसे कि हमारा
गोल्डन कलर का पेशेंट, जिस पेशेंट को हम शुरू से डिस्क्राइब कर रहे हैं, डायरिया पेशेंट हु वाज रेड। तो मैंने इतनी दफा ये मेंशन किया है, हम लोग को लास्ट मॉड्यूल जीआईटी का गुजरा था, तो हम लोगों ने उसमें बहुत ज्यादा डायरिया पढ़ा, तो मेरे दिमाग पर डायरिया चढ़ा हुआ है। लेकिन दैट वाज बेसिकली इट। इसमें एक चीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ, केस रिपोर्ट और केस सीरीज के अंदर डिफरेंस ये आएगा कि केस रिपोर्ट में जब आप केस प्रेजेंटेशन लिख रहे होगे, तो केस प्रेजेंटेशन आपकी सिर्फ एक केस की होगी, सिंस केस रिपोर्ट एक चीज का होता है। लेकिन केस सीरीज के अंदर यू आर रिपोर्टिंग मल्टीपल केसेस, जैसे केस 1 में डायरिया विद रेड स्किन हुआ, लेकिन केस 2 में डायरिया विद रेड स्किन था और उसको साथ वॉमिटिंग भी थी। तो इस तरह आपने 2-3 केसेस प्रेजेंट करने होते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं, यू कैन कोलैबोरेट बिटवीन हॉस्पिटल्स के में मुझे जैसे हमारा केस था मैड काउ डिजीज पर, उस पर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल की कि आप अपने ना हॉस्पिटल में चेक करो इफ यू कैन फाइंड अ मैड काउ डिजीज पेशेंट, और फिर मैंने उनसे कहा कि हम फिर कोलैबोरेट कर सकते हैं एंड वी कैन मेक दिस केस रिपोर्ट अ केस सीरीज। तो इस तरह की कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव भी आप ले सकते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट केस सीरीज। और केस सीरीज और केस रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि केस रिपोर्ट में आप कोई बहुत रेयर चीज फाइंड करते हो, कोई नई कंक्लूजन बताते हो। केस सीरीज में यू आर बेसिकली टेलिंग द डॉक्टर्स एक पैटर्न एग्जिस्ट करता है, जो कि आपने डिफरेंट केसेस में देखा। फिर ये जर्नल वाली बातों पे मैं इतना लंबा नहीं करूंगी, बिकॉज इसके लिए एक सेपरेट सेशन प्लान है हमारे प्रेसिडेंट साहब की तरफ से। तो वो आपको इंशाल्लाह जरूर हमारी तरफ से एक सेशन आएगा जिसमें आपको जर्नल सिलेक्शन हम सिखाएंगे। जर्नल सिलेक्शन के अंदर आपने किस जर्नल में क्या प्रेजेंट करना होता है, क्या जर्नल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या केयर जो चेकलिस्ट है। बेसिकली जब आप जर्नल्स को प्रेजेंट कर रहे होते हो, अपना चीज़ें अपना केस भेज रहे होते हो फॉर पब्लिकेशन, तो आपने एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने उनको एक वक्त में 2-3 जर्नल्स को नहीं भेजना होता। जब तक आप एक जर्नल को भेजते हो और उनकी तरफ से रिजेक्शन नहीं आती, यू कैन नॉट सबमिट दैट सेम केस टू अनदर जर्नल। उसके अलावा कुछ जर्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे केयर चेकलिस्ट है। केयर चेकलिस्ट जो है वो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ये होती है कि आपका जो टाइटल है, इफ़ यू राइटिंग अ केस रिपोर्ट, तो उसके टाइटल के अंदर यू हैव टू मेंशन कि आपकी केस रिपोर्ट है। इफ़ यू राइटिंग अ केस सीरीज, तो आपने उसमें मेंशन करना है, ये लफ्ज डालना है, ये कीवर्ड डालना है कि केस सीरीज है। कुछ जर्नल्स की रिक्वायरमेंट ये होती है कि सारे जो ऑथर्स हैं वो डॉक्टर्स हों, कोई मेडिकल स्टूडेंट ना हो। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं दैट यू नीड टू टिक मार्क before submitting your case to a journal. So ये मैंने थोड़ा सा बताना था। ये एक समरी है ऑफ एवरीथिंग दैट वी डिस्कस्ड टुडे, और ये स्लाइड्स इंशाल्लाह आपको हसन शेयर कर देंगे आफ्टर दिस। एंड दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स जिन कॉन्फ्रेंसेस में मैंने प्रेजेंट किया। ये हमारे पास ये शिफा है स्कॉलर से इस साल का। दिस इज आगा खान। मैं आगा खान गई थी और उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और आपको बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन गाइज trust me, when you get to experience all of this, it is actually worth it and it's very fun. This is me presenting at 4G Foundation. This is Dr. Munir, उन्होंने मुझे present किया था ये second position वाला gift. This is a Parker pen जो कि मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है. And this is me presenting again. This is me with Eamon presenting again. And that's basically it. ये if you guys have any questions, आप इसको नीचे chat box में लिख सकते हैं और हम बस एक केस रिव्यू करेंगे एंड देन we're good for this session. तो ये हमारा केस सीरीज है, ये किसी ने लिखा था। मैं आप लोगों को अपना वाला केस नहीं दिखा सकती क्योंकि वो जर्नल के कुछ मसले हो रहे हैं, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये एक बहुत अच्छा केस सीरीज है, इसमें बहुत सारी अच्छी तरीके से हर चीज़ लिखी हुई है एंड इट्स वेरी वेल रिटन। और ये पबमेड इंडेक्स भी है। पबमेड इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपकी केस रिपोर्ट जो है वो जो सर्च इंजन है फॉर मेडिकल आपके पेपर्स जो है ना उस वो पबमेड पे लिस्टेड है। तो ये है कार्डियक सूडो एनेरिज्म्स अ क्लिनिकल केस सीरीज।
फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अब मैं सूडो एनालिज्म नहीं बता सकती, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन बेयर विद मी, मैं आपको उसका बता देती हूँ कि इसमें आगे क्या है। ये ऑथर्स आ गए, ऑथर्स के साथ ये आपको मैं थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ कि वन जो लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये कि बंदा जो है ये इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि ये इस जगह का अंदर काम करता है, और ये टू जो लिखा हुआ है ये इस डिपार्टमेंट में काम करता है, ये इस हॉस्पिटल में काम करता है। तो दिस मीन्स के दो हॉस्पिटल्स के बीच में कोलैबोरेशन हुई है। फिर दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट, जो कि मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट में आपने हर चीज की समरी लिखनी है, और इन्होंने बहुत अच्छा क्रिस्प एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है। यूजुअली व्हेन यू सी एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ डिफरेंट पेपर्स तो वो एब्स्ट्रैक्ट जो है एक पैराग्राफ में डाल देते हैं, तो दैट डज नॉट लुक गुड, और वो आपकी रीडर के लिए मुश्किल करता है, हमारी जनरेशन के लिए तो बहुत ही मुश्किल करता है, बिकॉज वी हैव शॉर्टर अटेंशन स्पैन्स। तो उसके लिए इस तरह अगर आप लिस्ट करेंगे तो इट्स मच इजियर फॉर द पर्सन हु इज रीडिंग। तो आपने ये एब्स्ट्रैक्ट वाला पार्ट आ गया, देन वी हैव द इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ। इंट्रोडक्शन में उसने डिफरेंट पेपर्स से डिफरेंट लाइंस लिखी हैं, लेकिन उसने एग्जैक्टली सेम नहीं लिखी है। और ये छोटा सा वन दिख रहा है आपको, ये छोटा सा वन जो है इसने ये बता रहा है कि ये सारी जो इसने बातें लिखी है ना, ये इसने एक पेपर से लिखी है जो इसने नीचे रेफरेंस किया। रेफरेंस इटसेल्फ एक और सेशन होगा उस पर इंशाल्लाह, के डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम रेफरेंसिंग कर सकते हैं। ये अजीब तरीके से जो नाम लिखा हुआ है एक जर्नल का, और उसमें आपने सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि जर्नल का नाम, ऑथर का नाम, और इस तरह की चीजें, जो सीरियल नंबर्स होते हैं, तो ये चीजें आपने मेंशन करनी होती है और आपने उनको उनके काम का क्रेडिट देना होता है। तो ये इंट्रोडक्शन की बात आ गई। हमने साइटेशन की भी थोड़ी सी बात कर दी कि साइटेशन क्या होती है, और इसके बाद वी हैव वेरी गुड टेबल जिसमें उसने तीन केसेस पर केस सीरीज लिखी थी, और उसने तीनों केसेस के अंदर उसने एक बहुत अच्छा टेबल बनाकर उनकी कंपैरिजन दे दिया। फिर कंपैरिजन के साथ उसने अपने केसेस सारे, अब ये केस 1 केस 2 केस 3 करके ही हम केस सीरीज में लिखते हैं, केस रिपोर्ट में एक ही होता है। तो उसने सारी केस हिस्ट्री लिखी, रेलेवेंट डायग्राम्स डाली, जो भी आप केस रिपोर्ट या केस सीरीज कर रहे हो तो अगर आप उसमें डायग्राम्स डाल दो तो इट्स वेरी वेरी इजी टू गेट दैट पब्लिश्ड, और आप जब प्रेजेंट कर रहे हो तो तब भी वो बड़ा अच्छा लगता है कि यू हैव गुड इमेजिंग ऑफ योर पेशेंट। ये सारा उसने। अब केस प्रेजेंटेशन के बारे में मैंने ये बात बतानी है कि केस प्रेजेंटेशन इज प्योरली योर हिस्ट्री और किस तरह पेशेंट आपके ओपीडी में प्रेजेंट किया, आप इसमें कोई रेफरेंसिंग नहीं डालते, ठीक है। ये फिर और उन्होंने फिगर्स डाली है, एंड देन दिस इज द डिस्कशन पार्ट। अब डिस्कशन पार्ट में मैं आपको वही वाली बात बता देती हूँ जो उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने ये एक पेपर से लिया है, उसको रेफरेंस किया है, और फिर उस एक और लाइन लिखी है, फिर बोला कि केस 1 डेमोन्स्ट्रेट ये चीजें जो इस पेपर ने मेंशन की थी। तो उसने केस 1 और इस पेपर के अंदर जो फाइंडिंग्स लिखी हुई है उनको कोरिलेट किया है। तो दैट्स बेसिकली व्हाट यू डू इन डिस्कशन, कि आपके पास जो पेशेंट था वो एग्जिस्टिंग लिटरेचर से किस तरह डिफरेंट था या किस तरह वो उसके साथ कोरिलेट करता है। तो या दैट्स बेसिकली इट अबाउट के डिस्कशन वाला पोर्शन। इसने बहुत अच्छे टेबल्स बनाए हुए हैं, इसको बहुत आसानी से ये इसने पब्लिश कराया होगा, आई एम प्रिटी श्योर। और दैट्स बेसिकली इट। उसने यहाँ पर कंसेंट दिया हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, फंडिंग बताया हुआ है। कुछ जर्नल्स कहते हैं कि आप बताएं कि आपने फंडिंग ली थी या नहीं, फंडिंग किसने दी थी, एंड दिस इज द रेफरेंसिंग पार्ट, एंड we're done. So if you guys have any questions, if you like this session, तो आप लोग वो भी बता सकते हैं। लेकिन अगर कभी अभी किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो you guys can always message us on our Instagram, on my number, since मेरा नंबर हर जगह पड़ा हुआ होता है। और अगर अगर अभी आप लोगों ने कुछ पूछना है तो I am all ears. I hope you guys liked it, and Assalamualaikum. Abhi, I dropped my question in the chat box. okay, sure. Just a second. Okay, so how did I find my mentor? And अच्छा यार पता है, बेसिकली मैंने आपको वही बताया कि आप जब मेंटोर, अच्छा मेंटोर ढूंढना ना बहुत बहुत मुश्किल काम है।
मैं बगैर नाम शेयर किए एक स्टोरी शेयर करती हूँ. Since you guys are first years and second years, you will find seniors who are gonna exploit you. आपसे वो काम कराएंगे और वो आपको काम का क्रेडिट नहीं देंगे. वो कहेंगे आपने तो बस इतना छोटा सा काम दिया, हम आपको क्रेडिट क्यों दें. और कुछ सीनियर्स जो होते हैं, they're very scary. So please, ऐसे सीनियर्स के हर किसी के पास मुंह उठा के रिसर्च मांगने ना चले जाना. um, um, मैं इससे ज्यादा और कुछ मेंशन नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, there are some seniors who are very scary, so please अपना भी ख्याल रखना और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखना. उन सीनियर्स के पास ना जाना. तो आई थिंक सारा नोज whom I'm referring to. लेकिन मेंटोर मुझे मेरे जो मिले थे वो रीड के थ्रू ही मिले थे. डॉक्टर राफे को उन्होंने हमारे साथ अटैच किया था. मुझे और एमन को डॉक्टर राफे मिले थे और डॉक्टर राफे ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी. अभी हमारा मेंटरशिप का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ हुआ है. इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, आप उसमें अपनी फॉर्म फिल करें एंड वी गोना अटैच यू विद गुड मेंटोर्स जो कि आपको रिसर्च में हेल्प करें. For this year, I'm not a mentor because I am busy with a lot of stuff. लेकिन इंशाल्लाह in the coming future, maybe आप लोगों को help कर सकती हूँ and I can become your mentor as well. We have a lot of amazing people on our team जो कि mentors हैं भी and they're helping people out. तो you can always contact them और अपनी रिसर्च की जर्नी के लिए अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा दुआ करो क्योंकि अल्लाह ताला ही आपको अच्छे लोगों से अटैच करते हैं और बुरे लोगों से दूर रखते हैं. सो या दैट्स बेसिकली इट. और किसी का कोई सवाल है? वरना आई थिंक वी कैन एंड दिस कॉल. गाइस इतनी खामोशी. चलो, आई थिंक हसन वी कैन कंक्लूड द सेशन. Okay, everyone, thank you so much for coming along. And if you guys ever want to revise any of the information, like Alizabi said, we will be trying to upload the presentation and we also are recording the meeting, so you can always check back on anything if you wanted to. So once again, thank you guys all for coming, and I guess that's all. Allah Hafiz, everyone.